Like I wouldn't say merely easy पड़ गया. It's just banking. It's not about how much you study. Main thing that goes वो है strategy. उसमें हमारा जो एक फैकल्टी टीचर थे उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मुझे हिट की थी. If you think you can achieve something, like अगर आपको लगता है आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई एक हर्डल यू कैन क्रॉस दैट, यू स्टिल डोंट ट्राई फॉर इट, देन दुनिया में आपसे बड़ा फूल कोई नहीं होगा. तो फिर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई. टेबल था मेरा कंप्यूटर टेबल घर पे, उसको हटाया, खाली किया, एक स्टूल लगाया, सब वहाँ पेस्ट कर दिया जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी दिन में. एंड आई लाइक मुझे भी बिलीव नहीं आ रहा था और मेरी फैमिली को भी बिलीव नहीं आ रहा था कि इन 10th आई गॉट लाइक 89% एंड इन 11th मैं फेल हो गया. दैट वाज द लोएस्ट ऑफ माय टाइम. Hello everyone, welcome to another episode of Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. This is your host Agrima Mishra. आज हमारे साथ हैं अखिल, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 एग्जाम्स क्लियर किए. आइए उनसे जानते हैं कैसे. हेलो, हाउ आर यू? हाय, गुड मॉर्निंग. आई एम गुड. So congratulations on clearing your SBI PO and tell me something about you. Hello everybody. I am Akhil Kapoor. I hail from Himachal Pradesh. I have done my engineering, like BTech in civil engineering, and after that I went into job like in basic engineering field, but then I quit it, and I had my passion for SBI, not for SBI but for banking especially. So I just decided to follow that, and right now I'm sitting in front of you. That's so great. हिमाचल में आप कहाँ से पढ़े हुए हो और how many people are there in family? What is the background? Like Himachal is a very beautiful place, and I belong to Baijnath. Okay. That is like in district Kangra, and Baijnath is famous for its Shiv Mandir Baijnath. I don't think you know the story, but माना जाता है कि बैजनाथ मंदिर में जो शिव जी की मूर्ति स्थापित की गई थी वो रावण द्वारा की गई थी. And I hail from there, and being I'm from ST category, Gaddi community. Okay. So our ideal, we worship Shivji itself. In my family, I have my mother, Pitaji, and an elder brother. So आपने कैसे डिसाइड किया कि आप बैंकिंग का एग्जाम दोगे and you will start doing a government job? So ऐसा था कि मैंने इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग, from a government college in Himachal Pradesh. उसके बाद I went for internship in Mumbai. I was in Adani as a junior engineer. But 4 months in, मेरे को idea लग गया था कि that is not for me. Okay. So I just started searching कि apart from engineering, what can I do? तो मैंने एक लिस्ट बनाई for all the government exams जो इंडिया में होते हैं. और उसमें बिकॉज हिमाचल में आपको नहीं पता होगा, गवर्नमेंट जॉब्स का बहुत बड़ा क्रेज है. लेकिन बेंगलोर इट्स नॉट लाइक देयर, बट हिमाचल एंड द नॉर्दर्न सिटीज देयर इज़ अ वेरी मच डिमांड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. सो मुंबई में ही जॉब करते हुए आई जस्ट मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्टेट सेंट्रल लेवल एग्जाम्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड, एंड अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटी जो आई थॉट कि कौन सा है जो मैं क्लियर कर सकता हूँ इजिली इन वन गो. लाइक नॉट इजिली, नथिंग इज ईजी. So deciding that the last 2 options were SSC, CGL and banking. So I just chose banking. Okay. Instant बस ऐसे ही? No. Mainly because in banking I'm a person very jolly. I like to talk to people. I like to go around and view new places. I'm a tourist. So banking is a field जहाँ पे आपको daily it's a customer handling job. So daily you have to interact to customers, talk to new people, you experience new things. And apart from that, every 3 years you're posted somewhere else. Like you're not staying in a single place for more than 3 years. Okay. So that was a plus. I just decided to go with it. Okay. So जैसे आप पहले इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसके बाद आपने स्विच किया बैंकिंग के लिए. There are 2 different streams. Engineering comes from science and then banking comes from commerce. So आपको किस लेवल का डिफिकल्टी फेस करना पड़ा, या what all मतलब changes you faced for changing this stream? Like as such I couldn't feel that there's a major shift. But since banking is about commerce and various commerce के terms और वो सब आता है बीच में,
But being an engineer, it's easy to cope up with that because 4 साल की degree में we have a lot of things, like there are 50 plus subjects, so I just was able to cope up with that, but it might not be easy for everybody. जैसे आपके लिए बहुत इजी पड़ गया, बट जो दूसरी स्ट्रीम्स से बच्चे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल्स एंड ऑल, तो उनके लिए क्या एडवाइस दोगे कि हाउ कैन दे डील एंड दे कोप अप विद? Like I wouldn't say merely easy पड़ गया, it was just banking, it's not about how much you study. The main thing that goes वो है strategy. Okay. Like सबके पास same time है, but strategy it depends. Like we have 3 subjects, English, maths and reasoning. जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर दे आर कमिंग फ्रॉम कॉमर्स, उनके लिए इट्स स्टिल ईजी, नॉट वेरी ईजी बट स्टिल कंपैरेटिवली ईजियर देन दोज पीपल हु कमिंग फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, लाइक जो हिंदी मीडियम स्कूल से या फिर कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और द स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड. सो it's really tough for them to cope up because हिंदी वालों के लिए English is a big hurdle and those who come from medical उनके लिए math is a big hurdle. अच्छा. So for that it's just simple. You just have to basically complete the basics first. Like the basics, very very basics of maths and English are there, and for the Hindi people also, they can just follow the basic rules of Hindi English and just with time increase their level little bit by bit by. So आपका चाइल्डहुड टाइम कैसा गया और आपने किस तरीके से क्या स्ट्रीम्स चूज किया अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे? स्कूल टाइम तो सबका ही अच्छा होता है बट मेरा स्कूल टाइम इट वाज बहुत अच्छा था. लेकिन एक टर्म आती है इंग्लिश में दैट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन. बट इन माय केस ऐसा था कि आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ सम. सो स्कूल टाइम में आई वाज रियली गुड इन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स को लेके आई वाज मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव था मैं. हर स्पोर्ट में बहुत अच्छा था, लाइक लीडर एन ओवरऑल काइंड ऑफ क्वालिटी. एंड बट आई हैड माय सेटबैक्स आल्सो. जैसे कि till 10th I was a brilliant student and in 11th I failed. Oh, like that was a big setback for me. Which subject? Particularly in physics. Okay. Like I had failed by 0.5 marks. Okay. In physics. And I like मुझे भी believe नहीं हो रहा था और मेरी family को भी believe नहीं हो रहा था कि in 10th I got like 89% and in 11th मैं fail हो गया. That was the lowest of my time. But I had to cope with it. किया and I'm right here sitting in front of you. So how did your family dealt with it? Like उन्हें पता था that I gave my best. मैंने try किया, पढ़ाई की. Like they knew कि मैंने अपनी साइड से कोई कमी नहीं छोड़ी थी. So they just knew that it was not my fault. So they didn't blame me. उन्होंने they accepted it and move on with it. Okay. फिर आपने 11th clear किया? Yeah, like in KV there's a provision for when you fail in a single subject it's called a supply and you reappear for the exam. Then I reappeared and then got again. So आपने अपने कॉलेज टाइम पे कहाँ से कॉलेज किया था और क्या एग्जैक्टली आपने साइड परस्यू की थी इंजीनियरिंग में? इंजीनियरिंग में मैंने हिमाचल गवर्नमेंट HPTU इट्स कॉल्ड, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से एक कॉलेज है राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज. वहाँ से मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की है एंड थैंकफुल टू दैट वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी थी. लाइक अ बिग शाउट आउट टू माय कॉलेज. उन्होंने बहुत हमें मोल्ड किया, गाइड किया, मोटिवेट किया. एंड एट द एंड ऑफ लाइक द लास्ट ईयर देयर वाज अ सेशन. वहाँ एक सेशन था फॉर गाइडेंस फॉर अपना कैरियर को लेके. तो उसमें हमारा जो एक फैकल्टी टीचर थे, आई रिमेंबर हिज नेम, वासुदेव सर, उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मुझे हिट की थी दैट इफ़ यू थिंक यू कैन अचीव समथिंग, लाइक अगर आपको लगता है आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई एक हर्डल यू कैन क्रॉस दैट एंड यू स्टिल डोंट ट्राई फॉर इट, देन दुनिया में आपसे बड़ा फूल कोई नहीं होगा. एंड दैट हिट मी लाइक सच अ ब्यूटीफुल. या उसके बाद आई वेंट फॉर माई इंटर्नशिप इंजीनियरिंग में ही. मुंबई में था मैं, अदानी में, एज अ जूनियर इंजीनियर. वहाँ पे मैंने 4 महीने काम किया एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब. लाइक व्हेन यू चूज अ प्रोफेशन आपको वो पूरे लाइफ टाइम करना है. बट आई जस्ट थॉट दैट
I won't be able to do this job by heart. I won't love it this job. अगर मैं पूरे लाइफ करूँगा, मैं कर लूँगा, but I won't love this job. So I just quit it. उसके बाद, as I told you, I chose banking. I prepared for it. I came back home from Mumbai. ठीक है. And then I just sat in my home for like 5-6 months alone in my room and banking की तैयारी की मैंने. So आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि मैं जॉब नहीं करूँगा, जो मेरे पास ऑलरेडी आ रही है और मुझे ये करना है, तो उनका क्या रुख था आपकी तरफ? At first, like as I told, मेरे घर में माता जी, पिताजी and my elder brother हैं. So my brother is always supporting. उन्होंने तो सपोर्ट किया that अभी छोटा है, करने दो, फेल होगा, अगर नहीं होगा तो इसके पास ऑप्शंस हैं. His age is very less, तो वो कर लेगा. But since it was a good company, it was a big company, my package was good. तो मेरे mother and father they were not agreeing at first that लोगों को जॉब नहीं मिलती है and तुम तो छोड़ने की बात कर रहे हो, how can you do this? साथ में तैयारी कर लीजिए मुंबई में, जब जॉब शाम तक जॉब कीजिए, उसके बाद आके तैयारी कर लीजिए. एंड एक्चुअली मैंने ऐसा ट्राई किया था दैट 2 हफ्ते शाम को ऑफिस से आके आई यूज्ड टू स्टडी. लाइक मेरा वहाँ पे रूटीन ये था, आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, बाय 9:30 मैं ऑफिस होता था. आई गॉट फ्री बाय 6 एंड मैं घर नहीं आता डायरेक्टली. आई डायरेक्टली वेंट टू द जिम. ओके. एंड जिम में वो अपना वर्कआउट करके आई यूज्ड टू कम होम बाय 8:30. तो 8:30 आने के बाद मेरे पिताजी एक होटल में रिसेप्शनिस्ट हैं. Okay. So, उनका नाइट शिफ्ट होता था. मैं 8:30 आता था, वो 9 बजे जाते थे. तो उसके बाद मैं बैठता था वहाँ पर रूम में, मैं पढ़ता था. बट डीप डाउन मेरे को पता चल गया था कि अगर ऐसा कंटिन्यू किया तो नहीं हो पाएगा. सो आई डिसाइडेड कि आई जस्ट क्विट द जॉब एंड एक टाइम अच्छे से 1 साल दे दें. तो अपने घर वालों को बोला, एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया सबको एंड जस्ट टोल्ड देम कि आई एम जस्ट डिमांडिंग 1 ईयर, 1 साल मुझे दे दीजिए. आई विल ट्राई एज मच हार्ड एज आई कैन, एंड अगर नहीं होगा आई विल जॉइन बैक द कंपनी. सो अब आप वापस जा चुके हैं घर, एंड इसके बाद पढ़ाई कैसे आपने स्टार्ट की? मतलब कि आपने फर्स्ट स्टेप क्या लिया कि आपको क्या पढ़ना है अभी, क्योंकि बैंकिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले क्या उठाना है? मुझे अभी भी डेट याद है, मेरा बर्थडे था 20th of April एंड दैट डे आई टुक द फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू चंडीगढ़. 21st को मैं घर पहुंचा और लाइक मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी, लाइक लर्निंग, आई स्टार्टेड ऑन 1st of May. बीच के 9-10 डेज मैंने सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई थी. लाइक फुल स्ट्रेटजी फ्रॉम कोरा, रीडिंग आंसर्स फ्रॉम प्रीवियस टॉपर्स एंड watching YouTube videos. Like there were 2 mentors. I don't think I remember the name, but one is the Alpha Banker and I don't remember the other one. Okay. But I followed their videos. उन्होंने बहुत अच्छी strategies बताई थी and मेरी strengths and उनके guidance के हिसाब से मैंने plan किया that आने वाले जो 4-5 महीने हैं, 6 महीने हैं जिसमें एग्ज़ाम आएगा and मुझे उसमें prepare करना है, तो मेरे को क्या strategy follow करनी है that I clear it in one go. Being from engineering, I told you, मेरी English हमेशा से अच्छी थी, maths so and so, but reasoning was good. The first thing जो मैंने की थी ये from 21st of April to 1st of May, मैंने सिर्फ strategy बनाई. Like papers लिए, A4 sheets, उस पर लिखता गया, reading Quora, watching YouTube videos. There are various mentors in YouTube जहाँ पर आप देख के सीख सकते हैं कि how to do, what's the pattern and what is your strength. आपकी strength क्या है और आप उसको बेनिफिट में कैसे ला सकते हो. लाइक फ्रॉम बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मेरा मैथ्स इट वाज डिसेंट इनफ एंड रीजनिंग वाज गुड. सो आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपना फर्स्ट प्री का एग्जाम दिया था, एग्जाम नॉट बट मॉक टेस्ट दिया था एंड आई स्कोर्ड लाइक 27 out of 100, जिसमें से 23 वर ओनली इंग्लिश. द रिमेनिंग 4 marks were from both sections, like reasoning and maths. तो वहाँ पे मुझे आइडिया लग गया कि मेरा इंग्लिश अच्छा है, इसलिए मैंने इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं किया. लाइक मैंने पूरी प्रिपरेशन में इंग्लिश का एक भी वीडियो लेक्चर्स या कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ प्रैक्टिस फ्रॉम द मॉक टेस्ट्स. एंड द मेन थिंग फॉर मी वाज रीजनिंग एंड मैथ्स, क्योंकि रीजनिंग में मुझे आई गेस 0.75 कुछ नंबर मार्क्स आए थे उस मॉक टेस्ट में. सो आई थॉट आई हैड टू वर्क देयर बिकॉज दैट वो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हर कोई स्कोर करता है.
और अगर मैं वहाँ पीछे रह रहा हूँ तो फिर मैं रेस में पीछे था। तो फिर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक टेबल था मेरा कंप्यूटर टेबल घर पे, उसको हटाया, खाली किया, एक स्टूल लगाया एंड सब वहाँ पेस्ट कर दिया जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई उतने दिन बैठ के। लाइक स्ट्रेटजी ऐसा था कि डेली फोकस क्या है, डेली का कितना करना है, फिर वीकली का क्या करना है एंड मंथली कितना टारगेट होना चाहिए। ऐसे करके पूरा 6 मंथ्स का प्लान मैंने बना लिया। एंड उसके बाद मैंने सर्च किया। बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू सर्च कि आपको पढ़ना कहाँ से है। करेक्ट। एंड सिंस मैं जॉब कर रहा था, आई हैड सम सेविंग्स बट स्टिल आई डिडंट यूज देम। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम फ्री एंड यूट्यूब। आई वुड लाइक टू मेंशन, लाइक बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प करता है वो। देयर से अड्डा 247 का एक प्लेलिस्ट है, जीरो टू हीरो। ओके। बैक इन 2019 कोविड टाइम्स दे स्टार्टेड। वहाँ से मैंने अपना रीजनिंग और मैथ्स करा, लाइक फ्रॉम बेसिक्स, वेरी 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 बेसिक्स टू एडवांस लेवल। उसके बाद आई जस्ट बट मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था अनलेस एंड अनटिल आई कंप्लीटेड माय प्रीलिमिनरी स्टेज। जो सिलेबस था मैंने वो 90% तक कंप्लीट कर लिया था। टिल देन आई डिड नॉट गिव एनी मॉक टेस्ट। अच्छा। बिकॉज एंड यू शुड ऑल्सो नॉट गिव, बिकॉज ऐसा होता है कि when you give mock test in between, like you're only 40% or 30% syllabus is given, and आप mock test देते हो, then you're competing with everybody जिनका हो चुका है, जो repeat कर रहे हैं, everybody. तो when you see the marks and the percentage and the percentile, you just get a little demotivated कि सबका इतना अच्छा हो रहा है, I am very less, but you forget that तुम्हारी तैयारी भी तो उस लेवल की नहीं है. So that's why, because सबसे important है your morale, it should never get down in the studies. बीच में एक टाइम पे हुआ था when I was completing the syllabus for maths, एक सेक्शन आता है arithmetic का. उस टाइम पे like I was studying, during the lectures I was able to complete the solve the questions, but जब मैं अकेला बैठ रहा था सिर्फ क्वेश्चंस लेके, तो मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा था कि कैसे करना है. तो उस टॉपिक को लेके मैंने पूरे 5 to 6 days मतलब सिर्फ उसके पीछे लगा रहा. मैंने रीजनिंग भी छोड़ दिया, मैं इंग्लिश भी छोड़ दिया, सिर्फ उसके पीछे लगा रहा कि ये नहीं हो रहा है तो आई हैव टू डू इट. और उस टाइम पे मेरा मेंटल लेवल जो था वो बहुत गिर गया था. देन आई रिमेंबर्ड अगेन, आई सैट डाउन अलोन, सिंस आई टोल्ड यू आई एम फ्रॉम हिमाचल. आई जस्ट मैंने अपनी बाइक उठाई, जस्ट टुक अ स्ट्रोल अराउंड, बैजनाथ मंदिर में जाके बैठा, दिमाग शांत किया, वापस घर आया एंड आई डिसाइडेड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जितने नंबर चाहिए उसके लिए अगर तू ये नहीं भी करेगा यू विल स्टिल बी एबल टू गेट दैट, बट यू हैव टू फोकस. तो अपना कॉन्फिडेंस लेके मैंने उसको छोड़ दिया, नॉट क्विट. मैंने उसका सिलेबस पूरा किया, बट उस पर इतना फोकस नहीं दिया मैंने, हार्ड कोर फोकस नहीं दिया. तो मैंने बस इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स, लाइक मैथ्स में बेसिक्स किए एंड जस्ट दैट आई डिड इट. आई प्रिपेयर्ड फॉर प्री, देन फॉर मेंस में आई फॉलोड लाइक अनअकैडमी का एक कोर्स लिया था मैंने, नॉट प्रमोटिंग बट लिया था. देयर वाज दिस टीचर, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उनका कोर्स लिया था मैंने, लाइक ओल्ड वीडियोस ऑफ हिम. आई जस्ट फॉर, क्योंकि मेंस का कंटेंट यू डोंट गेट फॉर फ्री. आपको प्री का अच्छा सिलेबस एंड अच्छा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा. सो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स और जस्ट वन सब्जेक्ट? ही यूज्ड टू टीच ऑल द सब्जेक्ट्स. सो मेंस का कंटेंट you cannot get for free. You will get something from YouTube, but the quality content वो बहुत limited मिलता है. तो उसके लिए, सिर्फ उसके लिए मैंने अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लिया था. अब तो वो शायद से नहीं आता. Okay. उसमें उनके ओल्ड वीडियोस थे, वहाँ से मैं सिर्फ क्वेश्चंस देखता था. अच्छा. मैं वीडियो लेक्चर्स मैंने पूरे प्रिपरेशन में एक बार भी नहीं देखा. वहाँ से मैं सिर्फ क्वेश्चंस देखता था, क्योंकि गुड क्वालिटी क्वेश्चन वहीं से मिले मुझे, एंड क्वेश्चंस देखता था एंड सॉल्व करता था एंड मॉक टेस्ट लगाता था. माई फ्रिक्वेंसी वॉज मॉक की. प्री का मॉक सिलेबस जब हो गया था, जब आई वॉज 90% इन प्री का सिलेबस, तो मॉक्स में प्री का लगाता था एवरी थर्ड डे. और जैसे जैसे एग्जाम्स क्लोज आ रहा था तो एवरी सेकंड डे आई यूज्ड टू डू, बट नॉट एवरी डे. एंड मेंस का आई यूज्ड टू डू एवरी लाइक 2 days इन अ वीक. एंड व्हेन जब एग्जाम वॉज वेरी नियर, लाइक लास्ट 2 weeks, then I used to do every day 1 mock of mains. उससे बहुत इफेक्ट पड़ा था मुझे, क्योंकि एक एग्जाम में एक पैटर्न होता है क्वेश्चंस का कि इस लेवल में स्टार्टिंग क्वेश्चन यहाँ से आएगा, फिर ऐसे से, तो वो पैटर्न आपको पता चल जाता है. तो जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो, जब असली एग्जाम में आप बैठते हो, तो यू नॉट गेट सरप्राइज्ड कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है. यू हैव सम आइडिया, सो एक फियर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है उसमें. दैट हेल्प्स अ लॉट. इसके बाद जब आपने ये तैयारी स्टार्ट की और जैसे आपका एग्ज़ाम आ रहा था पास में, तो
व्हाट वाज द फियर, जो एक होता नहीं है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये लगा आपको कभी? क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने बहुत क्विक नोट में दिया, आपका आपने जून में आ गए, उसके बाद आपका आई गेस अगस्त नवंबर। मैं आया, तैयारी स्टार्ट की मैंने मई में। जो प्री था SBI PO का वो था नवंबर में, एंड IBPS PO का प्री था आई गेस सितंबर में। सो उतना ही टाइम था बीच में। हाँ, तो इस बीच आपने जब तैयारी कर ली और जब आपको लगा कि हाँ मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, जब प्रॉपर एग्ज़ाम देने की बात आई तब आपके अंदर क्या चल रहा था? एग्ज़ाम एज सच मैंने इतना टेंशन लिया नहीं, क्योंकि एक होता है कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी ओवर कॉन्फिडेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग। जब मैं आया था और मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, व्हेन आई प्रिपेयर्ड द स्ट्रेटजी, मेरे दिमाग में यही था कि मेरा तो हो जाएगा। अच्छा। एंड टिल दैट डे आई वाज आल्सो सेम, मेरा तो हो ही गया है, मेरा तो होना ही होना है, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? बिकॉज इट वाज लाइक दैट SBI PO में 2000 सीट्स थी और मेरे दिमाग में था आई ओनली नीड वन, आई डोंट केयर अबाउट द 1999। सो दैट वाज द माय थिंकिंग। एंड एग्जाम में जब बैठते हैं आप, तो बीच में जब मेन एग्जाम स्टार्ट होने से पहले देयर इज सम गैप, लाइक फॉर वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स। उस टाइम पे आई वाज अफ्रेड, उस टाइम पे योर हार्ट बीट गेट्स हाई, उस टाइम पे यू गेट एंग्जियस, बट या दैट इज वेरी एक्साइटिंग। फिर जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया तो? बट देन एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं तो दिमाग में इतना टाइम बचता नहीं है कि ये सब के बारे में सोचो। यू जस्ट सी द क्वेश्चन एंड यू जस्ट, जो बीच का टाइम होता है 1 घंटे का ड्यूरिंग द प्री टाइम, लाइक ट्रस्ट मी, जिसको आता है ना वो स्क्रीन के अलावा यहाँ देखता भी नहीं है। मैंने आई गेस 4 पेपर दिए थे, नहीं 3, RRB PO, SBI PO एंड IBPS PO। कॉन्फिडेंस इतना था कि क्लर्क एग्जाम भरे भी नहीं। तो 3 एग्जाम दिए थे। RRB PO मेरा नहीं हुआ क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं आती प्री में, एंड इंग्लिश वाज माय स्ट्रांग पॉइंट। SBI PO एंड IBPS PO आई क्लियर्ड एंड आई जॉइंड SBI PO। IBPS PO का भी मेरे पास जॉइनिंग लेटर था, बट आई चोज SBI ओवर दैट। जब आप वहाँ पे बैठे होते हो, एग्जाम दे रहे होते हो, तो एक बार आप सामने आ जाता है तो फिर आप करने लगते हो। हाँ, तो एक बार यू सी द स्क्रीन, इतना दिमाग में उतना टाइम भी नहीं होता, इतना थॉट प्रोसेस चलता भी नहीं है। आप बस क्वेश्चन पेपर देखते हो एंड यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दैट, और कब 1 घंटा हो जाता है ऐसा करके पता भी नहीं चलता उस टाइम पे। तो दैट वाज द टाइम। ओके, एंड देन व्हाट सॉर्ट ऑफ मॉक टेस्ट डिड यू टेक फॉर दीस एग्जाम्स? हाँ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज मॉक टेस्ट डिपेंड्स अ लॉट। आप कौन सा मॉक टेस्ट किस ब्रांड का फॉलो कर रहे हो, एंड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे हैव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज कुछ ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस वो इजी डालते हैं इन देयर मॉक टेस्ट्स, एंड कुछ सम आर देयर दे गिव लाइक वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चंस, इतने हार्ड कि वो एग्जाम लेवल के है भी नहीं। दैट इज वेरी हाई टू एग्जाम लेवल। आई वुड नॉट टेक द नेम, बट आई फॉलो 2 एक्चुअली। देयर इज दिस आई कॉल दिस इज टेक्स्ट बुक एंड देयर इज ओलिव बोर्ड। मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चला था, बिकॉज टेक्स्ट बुक इज लाइक एग्जाम लेवल से माइनर सा नीचे आता है, लाइक इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस। जब आप मॉक टेस्ट देते हो, it is a little bit on a easier side, I felt that. And olive board, I would say it's like proper exam level, neither low, little minute, a bit high, which is required. So ये 2 follow किए थे मैंने। Test book used to boost my confidence by giving me good marks, and olive board में I used to practice a lot because वहाँ पर the quality of questions is really good. Okay, which are the sources which you took? Like you said videos and then most of the websites, but did you choose books also? No, I did not. मेरी पूरी preparation में मैंने कोई भी book follow नहीं की थी। So everything is online? Yeah, everything was online videos and these 2 sources I got. So आप बोल रहे हो कि आपने ऑनलाइन पूरी पढ़ाई की। ऑनलाइन जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि आप चलो कुछ और देख लेते हैं, थोड़ी देर कुछ और कर लेते हैं, कंप्यूटर ही यूज़ करने हैं ना, वही कर लेते हैं। तो उस समय पे आपने कैसे अपने आप को होल्ड ऑन किया और फोकस्ड रहे आप? जब ऑनलाइन स्टडी करते हो ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर फोन, कभी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, यू टैप दैट एंड यू वेस्ट लाइक 2-3 आवर्स ऑन दैट। वी डोंट रियलाइज कि कब हमारा टाइम वेस्ट हो गया। उसके लिए मैं यही करता था, मैं अपना फ़ोन प्रिपरेशन के टाइम पे, जब मैं सुबह मेरा टाइम टेबल था, मैं सुबह 7:30 उठता था। नो, आई यूज्ड टू वेक अप एट 7। ओके, एंड 7 से 7:30 के बीच में आई यूज्ड टू गेट माय मॉर्निंग रूटीन डन। आफ्टर दैट मैं पूजा करता था घर पे,
और उसके बाद मैं बैठता था पढ़ने। तो एक परचम क्लासेस करके यूट्यूब पे चैनल था, उनका डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स आता था। उनका आता था डेली का, वीकली ऑन मंडे एंड मंथली। सो मैं नोट्स नहीं बनाता था, आई जस्ट यूज्ड टू गो थ्रू दैट। एक वीडियो 1 घंटे की आएगी दिन की, उसको पढ़ता था, वीकली आएगी, मंथली आएगी, उसको पढ़ता था, जस्ट दैट। बस सुनता था व्हाट शी इज सेइंग, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बस वो सुनता था। उसके बाद असली तैयारी स्टार्ट करता था। मैथ्स, इंग्लिश तो मैं करता नहीं था, मैथ्स, रीजनिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लाइक बेसिक स्ट्रेटजी वाज, आज मैंने मैथ्स का एक लेक्चर पढ़ा, कोई भी टॉपिक का, सब्जेक्ट का, तो वो लेक्चर टॉपिक पढ़ा, उसके 5 क्वेश्चंस दिए। तो टुमारो आई विल रीड द सेकंड टॉपिक। तो जब व्हेन आई विल स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठूंगा, तो कल के 5 करूंगा और आज के टॉपिक के 5 करूंगा, एंड सिमिलरली वो प्लस करते करते पिछले को ऐड करते करते इट विल गो ऑन लाइक दैट। तो सुबह 7:30 आई यूज्ड टू डू इट, एंड इन द इवनिंग देयर वाज नो फिक्स टाइम कि मैं को इतने बजे तक पढ़ना है। व्हेन द टारगेट जब खत्म हो जाए तो मैं चला जाता था घूमने बाहर दोस्तों के साथ। लाइक ऐसा मेरे कोई दोस्त नहीं थे। आई हैव अ फ्रेंड सुनील, ही इज इन मर्चेंट नेवी, वेरी मोटिवेटिंग। तो ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। कभी मेरे को नहीं होता था तो कॉल करके, अरे कोई बात नहीं, कर ले, साथ में कर ले, तू कर लेगा, फिर साथ में घूमेंगे, ये वो। तो ही वाज देयर फॉर मी, माय ब्रदर, माय फैमिली वाज देयर, एंड माय गर्लफ्रेंड वाज आल्सो देयर, शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। लाइक डेली दीज पीपल, शाम को मैं बैठता था तो दे यूज्ड टू आस्क मी, आज तूने क्या किया। दे यूज्ड टू डिस्कस करंट अफेयर्स विद मी, कि क्या पढ़ा मुझे बताओ, जितना मुझे पता है वो मैं तुमको बताता हूँ, या बताती हूँ। माय मदर आल्सो, शी इज़ वेरी इनटू, शी इज़ अ टीचर, उन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ स्कूल टाइम में, तो वो भी काफ़ी न्यूज़ वगैरह, करंट अफेयर्स ये सब फॉलो करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सचेंज करते थे मेरे साथ। तो घर में फीलिंग ये थी, मतलब घर का एनवायरनमेंट ये था। मेरे पापा मुंबई में थे, मेरा बड़ा भाई है वो यूके लंदन में काम करता है, तो घर पे मैं और मेरे मदर थे। बट आई हैड टू से दिस, उन्होंने मुझे बीच में एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया था। लाइक 5, 6 से 7 महीने जितने भी टाइम मैं घर पे बैठा होता, मैं सुबह बैठता था, शाम को उठता था, अपने ही रूम में बैठता था मैं। तो उन्होंने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया कि यहाँ जा, वो कर। खाना लाते थे, पढ़ते पढ़ते बीच में उठता था, मैं खाना खाता था, आता था, कुछ नहीं करना है, बस तू सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी सब हम कर लेंगे। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई गेस जितने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, उनका यही होता है कि उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है। बच्चों का टाइम वहीं लगता है कि या तो उनको साथ में जॉब भी करनी है, या फिर देयर फैमिली कंडीशन इज़ नॉट गुड। आई वाज लकी कि मेरे फैमिली में इतना सपोर्ट था, दे वर फाइनेंशियली दैट एबल कि मैं घर पे बैठ के काम पढ़ सकता था। सबके नहीं होते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट फैमिली शुड ऑल्सो सपोर्ट द स्टूडेंट, कि अगर वो पढ़ने बैठा है तो व्हेन ही इज स्टडिंग, डू नॉट डिस्टर्ब हिम, डोंट। उनको मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है, फैमिली ताने मारना स्टार्ट कर देती है दैट कुछ कर भी लिया कर, दिन भर पढ़ता रहता है, दैट एंड दैट। सो दैट शुड नॉट बी देयर, एंड दैट वाज नॉट देयर इन माय केस। सो जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो घर का और आपका क्या रिएक्शन था? लाइक कैलकुलेशंस तो पहले ही हो जाती है। मुझे तो पता था मेरा क्लियर होने वाला है, बट सम डाउट वाज देयर। होता ही है, यू आर कॉन्फिडेंट बट यू डोंट नो द रिजल्ट। सो था, जब रिजल्ट आया, मैं घर पे अकेला था, एंड मेरे बड़े भाई की वीडियो कॉल आई हुई थी, तो उनसे बात कर रहा था, और तभी रिजल्ट आया। SBI का लेट आया था, पहले IBPS का PO का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट आया था, तो मैंने देखा, हो गया, उन्हें बताया। द फर्स्ट थिंग आई डिड, कॉल कट करके शिव मंदिर जाके बैठा, मत्था टेका, वापस आया था। एंड SBI में जब उसका रिजल्ट आया था, तो साइट क्रैश कर गई थी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक टाइम में आते हैं, तो साइट क्रैश। सो जैसे आज शाम को रिजल्ट आया था, तो आई वॉज नॉट एबल टू सी द रिजल्ट टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैं सुबह आई गेस 6:30 उठ के मैंने वो रिजल्ट देखा था। क्लियर हो गया, थैंक बाय गॉड ग्रेस, एंड आई टोल्ड माय फैमिली एंड एवरीबॉडी वाज हैप्पी। तो वो जो बीच का फेज था आपका, जो रात से सुबह तक का, वो हसल कैसा था आपके साथ अंदर ही अंदर? वो बहुत खतरनाक था। लाइक उसमें एक टारगेट भी मैंने किया था। लाइक मैं देख रहा था रिजल्ट मेरा लोड नहीं हो रहा था, लेकिन सम स्टूडेंट्स, उनका स्टार्टिंग में जिनका हो गया था, दे हैव उन्होंने देखा था एंड यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। सो आई वाज जस्ट सर्चिंग SBI PO रिजल्ट 2023 24 23 24 एंड सेम रिजल्ट्स वर देयर। सो उनके व्यूज बहुत बढ़ रहे थे, और क्योंकि मेरा दिमाग वैसा इंजीनियरिंग वाला है, तो जब सुबह मैंने बहुत जल्दी उठ गया, 6 बजे उठा, आई वाज ट्राइंग की खुले, इट खुल गया, फिर आई वाज एबल टू सी इट।
तो मैंने उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया और मैंने भी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया दैट माय SBI PO रिजल्ट 2020 एंड यू वोंट ट्रस्ट विद इन 1 hour आई गॉट 1.5K व्यूज एंड इट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल। वाओ। लाइक इतने बच्चे नहीं देख पा रहे थे एंड दे वर सर्चिंग ऑन यूट्यूब। सो आई सॉ लाइक बहुत स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं, देयर इज अ ग्रेट फाइट फॉर दैट एंड देन आई गॉट मोर सीरियस बिकॉज उसके पहले मैं सीरियस था बट आई यूज्ड टू लाइक शाम को मैं घूमने फिरने निकल जाता था बाइक लेके। तो आई वॉज सीरियस बट आई उससे और ज़्यादा सीरियस हो गया फिर मेंस के लिए क्योंकि मेंस के लिए यू ओनली गॉट लाइक 1 month। ओके, सो चलिए अब उसके आगे चलते हैं हम अपने मेंस की तरफ, क्योंकि अब प्रीलिम्स तो हो गया लेकिन मेन रोड अभी बाकी है। इसकी जर्नी कैसी रही आपकी? मेंस का एज सच मैंने स्टार्टिंग में अलग से तैयारी नहीं की, जैसे प्री का अलग किया, मेंस का अलग किया। प्री के टाइम में जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है उसमें बेसिक से लेके मेंस लेवल तक, मेंस का थोड़ा बेसिक कवर करते हैं वो लोग। ओके, तो वहाँ से मैंने किया था, तो मेंस का थोड़ा आइडिया मुझे था कि क्या होता है। एंड साथ में उसी टाइम पे मैंने रिजल्ट का वेट नहीं किया था प्री के कि आफ्टर द रिजल्ट मैं मेंस का पढ़ना स्टार्ट करूँगा। मैंने पहले से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, पहले से ही मेंस के मॉक टेस्ट दे रहा था। जब रिजल्ट आया प्री का, उसके बाद ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी थी मेरी मेंस के मॉक देने की वो मैंने इंक्रीज कर दी एंड अपना मेंटल स्टेट को इम्प्रूव किया, क्योंकि मेंस के लिए प्री में आपको स्पीड चाहिए एंड एक्यूरेसी चाहिए एज मच एज यू कैन, बट मेंस में आपको स्पीड्स का मतलब नहीं है, आपको एक्यूरेसी इज मेन। लाइक कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड अपना मेंटल स्टेट नहीं खोना होता मेंस में, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है। उसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड देयर इज अ डिस्क्रिप्टिव पार्ट, वो अलग है, दे यू हैव टू डू। ओके, अगर आप किसी एक सेक्शन में आपका अच्छा नहीं गया, जो मेरे साथ हुआ था SBI में, तो आपको अपना मेंटल फोकस और मेंटल स्टेट, वो कामनेस नहीं खोना है, बिकॉज इफ यू लूज दैट देन you will lose the whole exam. Okay. So mains is more about mental strength instead of like speed and all. तो मेंस में मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी कि मॉक टेस्ट दूंगा, सिर्फ मॉक टेस्ट दूंगा और उसको एनालाइज करूंगा। अच्छा, कि जितने क्वेश्चन मुझसे हुए और जो नहीं हुए उसका कैसे करना था, व्हाट वाज द प्रोसीजर जो मेरे को नहीं हो पाया, तो वो आई यूज्ड टू डू। एंड एट द एंड मेरे मेंस में इतने नंबर आ रहे थे जितने मुझे चाहिए थे। लाइक पास्ट 3-4 साल के मैं बहुत एनालिटिक्स करता था मैं ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, कि प्री के लिए लास्ट 3 साल में इतने आए थे, एग्जाम लेवल इतना ड्रॉप हुआ, हाई हुआ, हाउ व्हाट कैन बी डन नाउ, इस बार व्हाट्स द एक्सपेक्टेशन, एंड मोस्टली आई प्रेडिक्टेड गुड। तो मेरे प्रेडिक्शंस भगवान की दया से चल गए एंड जितने नंबर मुझे चाहिए थे उससे ज़्यादा आए। एंड मेंस, क्योंकि मेंस का एग्जाम इस बार का बहुत डिफिकल्ट था। ओके, both in SBI and in IBPS. The exam level was very high. Reasoning में एक सेक्शन होता है, forgot, तो वो सेक्शन इस बार टोटली उन्होंने निकाल ही दिया। Okay. And only the puzzles and critical reasoning was there. So luckily critical reasoning की तैयारी मैंने की हुई थी, मैंने कोई छोड़ा नहीं था कुछ भी, तो it helped me there. And SBI में, SBI PO mains में, my center was in Shimla. Okay. तो मैंने शाम की बस ली थी अपने घर से, 8 घंटे का सफ़र था। सुबह 3-3:30 बजे शिमला पहुंचा और अर्ली मॉर्निंग में मेरा एग्ज़ाम था। सो आई वेंट देयर, फर्स्ट सेक्शन ओपन, मैथ्स, इट वाज वेरी टफ, इट वाज वेरी टफ। लाइक 20 मिनट हुए एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, वो सेक्शन को स्टार्ट हुए, एंड मेरा एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था तब तक। आई वाज लूजिंग माय लाइक स्ट्रेंथ देयर, पेशेंस देयर, कामनेस, दैट क्वेश्चंस ट्राई कर रहा हूँ पर नहीं बन रहा। देन आई जस्ट एक सांस लिया, पीछे आया, ऐसे राइट लेफ्ट देखा मैंने, आई कुड सी द फ्रस्ट्रेशन सबके चेहरों पे। देन आई थॉट कि एग्जाम ही टफ है, ये किसी से भी नहीं बन रहा। ओके, फिर मैंने क्वेश्चंस गो थ्रू किए सारे के सारे, कि विच इज द इजी वंस दैट आई कैन लाइक ट्राई आउट। तो वहाँ पर आई डिड 4 or 5 questions, and then reasoning was also difficult, same that section was not there, and then I जो मैंने किया था critical and puzzles वो किया। English was not easy, not difficult, on a medium scale, but it was lengthy. Okay, it took time, जितना मैंने expect किया था उतना मैं solve नहीं कर पाया था। But luckily, क्योंकि होता क्या है कि SBI या फिर IBPS या बैंकिंग एग्जाम्स में व्हेन डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होता है तो हमारे जो सेंटर होते हैं, एग्जाम सेंटर, वहाँ के कीबोर्ड्स आर
पता नहीं क्यों SBI प्लीज फिक्स दिस, दे आर नॉट वर्किंग, मतलब वो अच्छी कंडीशन में नहीं होते हैं। बट लकीली दैट वाज अ न्यू सेंटर, तो उसका कीबोर्ड जो था वो परफेक्ट था, इट वाज ब्रांड न्यू, तो आई कुड यूज ऑल माय फिंगर्स टू टाइप। बट ड्यूरिंग IBPS द जो सेंटर था दैट वाज हॉरिबल सेंटर, वहाँ का कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा था। लाइक आई विल टेल यू, मेरा जो लास्ट सेक्शन होता है दिस इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उसमें मेरे को पॉज कर दिया था क्योंकि मेरा मैं जैसे एक बटन को एक बार दबा रहा हूँ A, then it was appearing 5 times like A, long press, हाँ long press हो जा रहा था वो, तो I used to press A then backspace 4 times then press the next then backspace 4 times, उतना कर रहा था मैं, टाइम टेकिंग हाँ भी टाइम था। ऐसा कि मेरा एग्जाम जो IBPS का था वो एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, बट डिस्क्रिप्टिव ड्यू टू दैट कीबोर्ड वाज नॉट गुड, तो उसमें मुझे डर बैठ गया था कि एग्जाम तो बहुत अच्छा हो गया है बट डिस्क्रिप्टिव आई डोंट नो इफ आई विल क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ और नॉट, बट हो गया वो भी। एंड मैं SBI में क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स दोनों टफ आ गया, तो इसमें एग्जाम इतना कुछ अच्छा नहीं हुआ, आई वाज ऑन मीडियम रेंज, बट डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा हो गया, और इसमें डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर्स का होता है, तो आई वाज लाइक ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, लाइक उसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता लेकिन मेरा टाइम से 5 मिनट पहले ही हो गया था, राइटिंग एंड चेकिंग ऑल्सो, सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये तो बहुत अच्छा हो गया डिस्क्रिप्टिव, पर एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ। तो दोनों में सिचुएशन कुछ वैसी थी, डाइसी सी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पहले इसका आया था, SBI का पहले आया था, तो वो तो मेरा हो गया था, फिर IBPS का आया था, तो उसमें होता नहीं होता डजंट मैटर टू मी, बट हो गया, उसमें भी बैंक ऑफ बड़ौदा मिला एंड रिसीव द जॉइनिंग लेटर आल्सो, बट आई चोज SBI ओवर दैट। ओके, सो जो ये टाइम पीरियड में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या आप जब रिवीजन वाला पार्ट था वो आपने किस तरीके से किया? लाइक ऐसा मैंने आपको बताया पहले ही, रिवीजन ऐसा नहीं होता कि मैं आज टाइम एंड स्पीड एंड वर्क करूंगा एंड उसको फिर छोड़ दूंगा, आज टाइम वर्क स्पीड किया है, कल टाइम एंड वर्क किया है, लाइक आज स्ट्रीम्स किया, कल टाइम एंड वर्क किया, तो कल का क्वेश्चन भी आज मेरे को करना है और आज का भी साथ में करना है। सो सेम चीज आपने मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ही की है? यस एग्जैक्टली, डे फर्स्ट में जो मैंने टॉपिक किया था उसके क्वेश्चंस भी आई यूज्ड टू अटेम्प्ट डेली, फिर उसका नंबर कम कर दिया, स्टार्टिंग में 5 करता था, या स्टार्टिंग फर्स्ट डे में तो 15 करता था, फिर कम करते करते डेली के 3 पे आ गया था मैं, बट डेली करना है, क्योंकि इस एग्जाम में ये नहीं, द मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी, आप डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, फोकस करके स्ट्रेटजी बना के पढ़ेंगे तो हो जाएगा, इट इज नॉट वेरी 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 डिफिकल्ट, बट द मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी। मेरे साथ भी हुआ था बीच में कि 1 या 2 दिन मैंने पढ़ाई नहीं की थी, ड्यू टू सम रीजन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और उसमें भी आई कुड सी दैट कि जो मेरे नंबर आते थे प्री में वो थोड़ा डिग्रेड हुए। कंसिस्टेंसी इज देयर, इट शुड बी देयर, एंड एंजॉय करना मत भूलो यार, एंजॉय करिए, जैसे आज सुबह बैठते हो शाम को खत्म होता है, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर फ्रेंड्स, गो आउट, ईट समथिंग, तो एंजॉय करेंगे तो वो लगेगा नहीं आपको कि वो बीच के 6, 7, 8 महीने कब निकल जाते हैं। सुबह पढ़े, शाम को एंजॉय करो, वॉच अ मूवी, वॉच सम इंग्लिश मूवीज ऑल्सो, अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हो सबटाइटल्स के साथ देखो, अगर समझ नहीं आता, अगर समझ आता है तो सबटाइटल्स के बिना देखो, बट इट विल हेल्प अ लॉट। लाइक मेरी इंग्लिश, आई डिडंट नो द रूल्स, जब मैंने इंग्लिश का तैयारी की थी मैंने बीच में सोचा कि अगर मेरे को बिना रूल्स पता हुए, जस्ट बेसिक ऑन माय गट आई एम गेटिंग दिस स्कोर, तो लेट्स जस्ट ट्राई टू लर्न द रूल्स, कि रूल्स लेके मैं और अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, बट दैट डिडंट वर्क फॉर मी, बिकॉज वो गट फीलिंग से मैं यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चंस, तो व्हेन मैंने जब रूल्स याद किए तो मेरा स्कोर गिरा, आई जस्ट लेफ्ट दैट कि नॉट फॉर मी। तो दिस मेरा इंग्लिश अच्छा कैसे हुआ, बेसिकली स्कूल टाइम में तो कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है, बीइंग फ्रॉम नॉर्थ, वहाँ पर इंग्लिश बोलोगे तो लाइक साउथ में तो अच्छा है, लेकिन नॉर्थ में इंग्लिश इट्स नॉट, इतना बोला नहीं जाता, तो यहीं से मेरे बड़े भाई ने मेरे को आदत लगाई थी, मैं इंग्लिश गाने सुनता था, इंग्लिश मूवीज देखता था, वहाँ से एक बन गया था, व्हेन आई यूज्ड टू सी द क्वेश्चन आई लाइक ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग वन, बट वो क्यों रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है, आई डिडंट नो, इट वाज जस्ट गट फीलिंग। सो ये जब आपका ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम आपने दे दिया, अब आप वापस आ गए, फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, उस बीच के टाइम स्पैन का आपका क्या हासिल था अंदर? क्योंकि एक तो क्लियर कर दिया है आपने, दूसरे वाले के लिए अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। एक्चुअली मैं उल्टा सोच रहा था, SBI मेरा क्लियर हुआ, IBPS आई वाज थिंकिंग, क्योंकि मेरा क्लियर था मैंने SBI ही ज्वाइन करना, तो IBPS आई वाज थिंकिंग कि मेरा ना हो, ताकि सम अदर कैंडिडेट गॉट द सीट,
एंड दैट इज़ वाई कि जब मेरा अगर हो भी गया तो मैं काउंस के जो ज्वाइनिंग थी उसमें मैंने अपीयर नहीं किया था, ताकि आई डोंट वेस्ट अ सीट फॉर एनीबडी एल्स, बिकॉज SBI में देर इज नॉट रिजर्वेशन, लाइक अगर रिजर्व लिस्ट नहीं आती है SBI में, बट IBPS में देर इज रिजर्व लिस्ट। अच्छा, IBPS में जितनी वैकेंसीज थी उतने बच्चों को दे कॉल आउट फॉर ज्वाइनिंग, उन्होंने Okay. नहीं किया, देन रिजर्व लिस्ट 1 विल बी देयर, सो नो सीट्स विल बी वेस्टेड। लाइक इफ आई क्लियर्ड, मेरे को सीट मिला बट मैंने नहीं लिया, तो वो वेस्ट नहीं होगा, वो रिजर्व लिस्ट 1 में किसी और को मिल जाएगा। ओके, सो मैंने उसमें गया ही नहीं, SBI में आई जस्ट स्टिक टू SBI, एंड नाउ आई एम हियर इन बेंगलोर। हमारे ज्वाइनिंग भी यहीं हुआ, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, मेडिकल्स, एवरीथिंग इज डन है, पोस्टेड नाउ हियर ओनली। सो जब आपका इंटरव्यू राउंड पे जाते हैं, इंटरव्यू राउंड पे आपने किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन की? दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंटरव्यू के लिए मैंने खुद से प्रिपेयर करना अच्छा डिसीजन नहीं सोचा। ओके, मैंने गूगल किया, क्योंकि हिमाचल में इंस्टीट्यूट्स नहीं है तैयारी करने के लिए, ठीक यू है, हैव टू गो आउट, एंड द क्लोजेस्ट प्लेस इज आइदर शिमला और चंडीगढ़। ओके, सर्दियों का टाइम था तो शिमला फिर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड थी, तो चंडीगढ़ आई प्रेफर्ड, एंड जनवरी 25th was my interview. ओके, हाँ, January 25th was my interview. So उससे एक महीना पहले I went to Chandigarh. I searched on Google which is the best institute nearby for this coaching and all. And one institute was the AAA Bright Academy. And they were giving just a free interview course. Okay. Free for all. जिन्होंने they had cleared the mains and they wanted to appear for the interview and didn't want to spend that money, so they just offered free course. And not like कि अगर free है तो quality अच्छी नहीं, very good quality. वहाँ पे सुबह जाके शाम को I used to come, like 4 hours का एक सेशन होता था। वहाँ पर वो हमें इंटरव्यू में दो phases होते हैं. Okay. One is group discussion, group exercise, and there is this main interview with the panel. तो वहाँ पर there was separate teacher for GED, GE, and for interview they conducted our interview classes also. उधर से मुझे आइडिया मिल गया कि GED, GE में कैसा बोलना है. I got the confidence, like डेली वहाँ पर प्रैक्टिस होती थी, like रियल की तरह बिठा के. We used to conduct a group discussion and group exercise. And in the interview itself, the main interview, it was in Chandigarh sector 17. वहाँ पर मुझे इतना डिफिकल्टी नहीं आया GED, GE में. Like, and luckily I got the good group. Like usually होता क्या है कि ग्रुप में they try to dominate each other. वो एक दूसरे को downgrade करते हैं to make their own voices heard. But in my group it was very good. Like they were very supportive. एक दूसरे को support कर रहे थे. Like if I'm saying something and they are saying something, they'll lower their voice so that I can speak. And similar was the situation. The panel heads थे हमारे. They were very impressed with our group. I guess सबको अच्छे मार्क्स मिले होंगे. I am in touch with a few of them. वो भी सिलेक्ट हुए मेरे पैनल से. So इंटरव्यू राउंड से पहले आप एक फॉर्म फिल करते हो. So उस फॉर्म की क्या प्रोसीडिंग होती है? उस फॉर्म में कितना सच होता है, कितना झूठ होता है, जरा उसके बारे में बताइए. हाँ, इंटरव्यू तो आप बाद में स्टार्ट होता है. अर्ली मॉर्निंग वी वर कॉल्ड लाइक 7:30. तो सुबह तो सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देयर वाज लिट फॉर्मल agreement and form filling. Very supportive staff. The HR department जो के लोग वहाँ बैठते हैं सुबह in the morning in LHO, they were very supportive. कोई document नहीं है तो they were like, we'll get it for you, we'll try to do this, they give us time. मेरा तो luckily सब मैं पूरा करके चला था, तो मेरे ऐसे सच कोई issue नहीं आया, but some students का आया था. So they helped them, they shift their slot to थोड़ा बढ़ा के उनको help किया. Like nobody was disturbed at the time. So that form contains of what all information, like as it your name, your details. हाँ, इंटरव्यू के लिए एक फॉर्म भरवाते हैं. You just make me remember. मैं भूल गया था. उसमें ये आपकी बेसिक हॉबीज होती हैं. Okay. What is your name, your family, your family situation, schooling, interests, hobbies, ये सब होता है. आपके अचीवमेंट्स. Like मेरे अचीवमेंट्स में मैंने ये लिखा था कि स्कूल एंड कॉलेज एंड एवरीवेयर आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, एथलेटिक्स एवरीवेयर. तो फुटबॉल वगैरह मैंने इंस्टीट्यूट लेवल, कॉलेज लेवल पे बहुत खेला हुआ है, तो मैंने वो भी लिखा था. एंड लकीली मैंने जिम का भी लिखा हुआ था. एंड जब मेन इंटरव्यू स्टार्ट हुआ विद द पैनल, माय होल इंटरव्यू वाज रिवॉल्विंग अराउंड दिस ओनली, माय हॉबीज ओनली. एंड उसमें भी आई थॉट माय इंटरव्यू वेंट लाइक superb, but I didn't get that much good marks. Out of 50 I got 39 only. I was expecting like 47, 48. So you never know.
आपके साइड से बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा, लेकिन पैनल मेंबर वोंट गिव यू द मार्क्स, एंड समटाइम्स यू थिंक दैट योर इंटरव्यू हैज नॉट गॉन गुड, बट यू विल गेट लाइक 48 49. लाइक माय फ्रेंड टोल्ड मी, ही इज आल्सो इन SBI, he said that मेरे हिसाब से मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था, but he got 49 marks. So जो आपके ग्रुप डिस्कशंस में टॉपिक्स आते हैं वो कैसे टॉपिक्स आते हैं, मतलब जेनरिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, किस तरीके के होते हैं? Topics are not like very specific to something. Okay. Like मेरा topic from group discussion was how to cope up with poverty in the country. अच्छा. That is very minimal question, and luckily there was no debate on the question. How to improve एक term था, तो उसमें हमें we only had to say the positives. We didn't have to say the negative. That is also a reason कि हमारा clash नहीं हुआ किसी group member का. एंड बाकी भी जितना मैंने अपने बाकी फेलो कलीग से बात की थी, ऐसा स्पेसिफिक किसी का नहीं आया था. बेसिक जो आपके इन्वायरमेंट में चल रहा है इंडिया या फिर पॉलिटी या फिर न्यूज़ में जो भी चल रहा है, उसके रिगार्डिंग कुछ भी डाल देते हैं वो लोग. तो यू जस्ट हैव टू, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, यू विल बी एबल टू स्पीक देयर कॉन्फिडेंटली. आपको ज़्यादा नहीं बोलना होता वहाँ, कॉन्फिडेंटली अच्छे से पॉइंट रखो, रिस्पेक्टफुली पॉइंट रखो. एंड हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप डिस्कशन? It was a panel of 10. Okay. One guy was missing, I guess. He didn't attempt the interview. अच्छा. So we were like 9 left. So 9 का group था. हाँ. And जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे थे from the panel, उस टाइम पे how many interviewers were there? There were 4, as I remember. अच्छा. One was the panel head, and there was single lady, and 2 other senior executives of bank. They were very good, very supportive. Like उन्होंने बीच में एक बार भी demean नहीं किया. If I was not able to answer something, like if the panel head is asking me a question and if I'm like stuck somewhere, then the other panel member will try to help me, like a little bit lift me, and that was a good environment. Actually. तो फिर अब फाइनल आप सिलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया, सारे रिजल्ट्स आउट हुए, उसके बाद का रिएक्शन क्या था सबका, घर वालों का, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स? लाइक घर में तो सबको पता ही था, बट फैमिली में आउटसाइड माय होम हमने सबको नहीं बताया था दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, बिकॉज हो जाता है तब तो सब तारीफें कर देते हैं, बट व्हेन इट डजंट हैपन तो सब डिमीन भी करते हैं कि घर पे बैठा है, तैयारी कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्या ही कर रहा है, पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू प्ले. तो वो वी डिडंट वांट टू डिस्क्लोज, तो हमने किसी को बाहर नहीं बताया था. ओनली अ वेरी फ्यू क्लोज वंस न्यू. तो जब हुआ तो लकीली देयर वाज अ मैरिज, अ वेरी क्लोज रिलेटिव की मैरिज थी. तो जब हुआ था तो वी वर देयर. तो जस्ट जब हुआ तब सबको लगा हुआ था. इट वाज वेरी हैप्पी, इट वाज वेरी गुड, वेरी गुड. लाइक मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट बैंकर, सो इट वाज अ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस. Nice. And how was the reaction of your friend, your best friend? Yeah, he's always happy for me. वो मर्चेंट नेवी में है, but he always calls me. वहाँ टाइम नहीं मिलता इन द शिप, सिग्नल नहीं मिलता, but he always calls me, always catches up on me during the preparation also, as I told you. And I forgot to tell you, the one of the most important reasons why I chose banking. Yes. It was a sentimental reason. मेरे ब्रदर मुंबई UK गए थे for his masters. He has done his bachelor's from Delhi University. Okay. Then he went to UK for his masters MBA. So उन्होंने अपना लोन SBI से लिया हुआ था, एजुकेशन लोन. And the staff was very helpful. उनका application everything went smoothly. And we could achieve because मैं घर पे इसलिए बैठ पाया क्योंकि मेरा बड़ा भाई अर्न कर रहा था. तो it was somewhere because of SBI that we were in that financial situation. So that was also there, क्योंकि I am very emotional. मेरे को लोगों को help if I see someone needy and I don't help them, I feel bad for myself. And same I try to follow in the branch also. Like if someone is coming there and I can help them किसी भी way में, तो I always try to help them. So that was the reason I chose banking. That क्योंकि हमारा सपना पूरा हुआ, हमारे family situation अच्छा हुआ. So बाकियों के लिए भी I can help. I can provide something from my side to the society. That is also there. So एक और चीज़, जैसे आप ने 11th में थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस की थी, हाउ वुड यू से कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो बैंकिंग का, वो भी बहुत टफ होता है, उसमें भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, फेलियर कैसे लोग को डेल्ट करना चाहिए?
दैट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम Okay. पर्सन टू पर्सन, उनकी फिजिकल हालत, उनके मेंटल स्टेबिलिटी एंड देयर फैमिली के ऊपर ऑल्सो. लाइक इन माई केस मैंने आपको बताया, माई फैमिली वॉज वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल. दे वर अंडरस्टैंडिंग एंड दे वर लाइक, हो गया, यू डिड वेल, वी विल ट्राई अगेन, देन इट गॉट क्लियर. बट एवरीबडी, उनके सबके फैमिली हमेशा सपोर्ट नहीं करती है. लाइक दे माइट ब्लेम यू और समथिंग, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू बी स्टे स्ट्रॉन्ग. लाइक माई थिंकिंग इज लाइक दैट, आई ओनली केयर अबाउट माई सेल्फ, माई फैमिली. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रिलेटिव्स हो गए या फिर आउटसाइड फ्रेंड्स हो गए, उनका मैं इतना ध्यान नहीं देता. फॉर माई सेल्फ, माई पीस, मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट. And that is very important for everybody. You should always be mentally stable, peaceful. उसके लिए हमेशा you have to, कोई physical activity में you should be involved. Like अगर कोई sports पसंद है, do that, yoga and gym, like working out घर पे भी, it's very important. Because जब आप कुछ करते हो ना और you complete it, you get a very good feeling. मुझे भी जब मैं तैयारी कर रहा था एंड आई यूज्ड टू कंप्लीट ऑल माय टारगेट्स फॉर द डे, लाइक इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग. बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ प्रोडक्टिव करते हो. दैट्स इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू अ सेटबैक, स्टे स्ट्रांग. लाइक समवन शुड बी देयर टू टॉक टू यू. कोई ना कोई तो होता ही है, फैमिली में कोई होगा, रिलेटिव्स में कोई होगा, फ्रेंड्स में कोई होगा. टॉक टू दैट पर्सन, शेयर योर थॉट्स एंड शेयर योर इमोशंस. लाइक शेयरिंग इज केयरिंग. चलो, बहुत सीरियस बातें हो गई, अब कुछ फन करते हैं. लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड. श्योर. If you had to change your name, what would your name be? And why would you choose that name? I've got a pretty clear answer for that. Like मैंने बोला, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो हमेशा से मेरे को एक नाम था जो हर एक मंत्र के पहले आता है, ओम. Okay. तो मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगता है. I would like to, if I get a chance, I would like to change it to Om. Okay. If you could know the absolute and total truth of one question, what would you ask? I would like to ask about God. Okay. What's the most interesting thing you have read or seen this year? रेड का तो पता नहीं, बट एवरीथिंग आई डू, जो भी मैं करता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो बहुत कुछ किया है. ट्रिप्स पे गया हूँ, बाइक राइड्स पे गया हूँ, बैंक ज्वाइन किया है, कस्टमर्स बहुत बचता है. Okay. What job would you be absolutely horrible at? सच तो कुछ नहीं है, बट आई डोंट नो, मे बी गेटिंग ओल्ड. What movie has everyone else seen but you haven't? जितनी भी मूवीज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन लॉन्च हुई थी, लाइक जवान, शाहरुख खान की, सलमान खान की, बहुत ज़्यादा मेरे को मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली गोइंग टू द थिएटर. और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मूवीज रिलीज हुई थी जो बहुत फेमस हुई, बट आई मिस्ड इट. If you had the world's attention for 30 seconds, what would you say? Just be happy, spread positivity, and always try to create an impact in the surroundings. Like कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, don't think any otherwise. Stay positive and just keep a smile on your face. When you smile ना, तो एक energy जाती है, चाहे even it's a fake smile. You smile and the people around you naturally gets happy. So just smile, keep smiling. Such a sweet thing to say. If you had to work but didn't need the money, what would you choose to do? Charity work. I would like to open a dog shelter and a cow shelter. Okay. Would you leave your hometown or stay in your hometown? Forever? Yes. Stay. That's a beautiful place. I would like to stay there forever. So for all the beautiful answers, we would like to give you a beautiful hamper which is from our team for you. Thank you so much. So before closing, what would be your one advice which you will give to our aspirants? The advice would be that during the preparation, अपने आप पे भरोसा रखो. आपने चूज़ किया है कि आप इस एग्ज़ाम को फाइट करेंगे, तो अच्छे से स्ट्रेटजी बना के सिंसियरली, डेडिकेटेडली, कंसिस्टेंटली उसको फोकस करो. इट विल हैपन.
sooner or later you will get to it, you will achieve your dream. And सिर्फ इसके लिए you don't have to like quit your relations and etc. like with your friends, you don't have to cut off like with your family also. ऐसा नहीं है कि you just study and sleep and wake up and study. Try to enjoy also. Like life is more into enjoyment as well as planning. That's all from my side. Thank you. Okay. So ये हमारी एक परंपरा है which we always follow. किसी टॉपर का नाम यहाँ पे बताइए so that we can call them as well and they can share their story with us. So there was this friend with me. वो भी तैयारी कर रहा था SSC CGL की purposely, और उसका CGL में भी हुआ था और उसका बैंक IBPS PO भी क्लियर हुआ था. तो now he's joined IBPS PO. He's in Punjab and Sindh Bank. So I would like to tag you, buddy, Sachin Rana. Sachin Rana. So Sachin, be ready. Our team will contact you. See you soon. Thank you so much. It was really nice meeting you and getting the insights of your life. And see you soon. Thank you some so much, other time. So this was the story of Akhil. I hope उनकी फेलियर से सक्सेस तक की स्टोरी आपको पसंद आई हो और बहुत सारी इंसाइट्स भी मिली हो. So if you like this video, please like, share and subscribe. Let's crack it together.